ٹاؤنس لاگو گورمنٹ کران اپیل اَسہِ سۭتۍ مت کٔرتو نِندٕر تہِ کران خۄدا رسوٗلَس پٮ۪ٹھ اگر مےٚ ہسبنٛڈ چھُ راتَس کُنہِ ساتہٕ مریم ہارٹ فیل گٔژھِتھ یہِ چھُم بیٛاکھ مولے فرقان کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، شیروانی کالنی کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، فتح پورہ کے ساتھ انصاف کرو، ساری بستی کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو۔ آپ سامنے جو گھر دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے کئی سارے مکان ہیں، قریباً 100-150 کے آس پاس جو گھر ہے وہ اس میں ہٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ مجبور ہو گئے کہ ہم سڑکوں پہ آئے پروٹیسٹ کے لیے۔ ابھی جو یہ پروٹیسٹ ہے یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے ہماری طرف سے۔ ہم بس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے۔ خاندان ہارٹ پیشنٹ خاندان زمین کن بارہمولہ میں زمین لکن جائے لکن اگر ژوٗنٛٹھِس منٛز بیٚہمو تیٚلہِ چینج کرو ریلوے ٹریک کو، 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 چینج کرو چٹی والوں کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، شربی کالنی کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف فرقان کالنی کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، چٹی والوں کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، ریلوے ٹریک چینج کرو، ریلوے ٹریک چینج کرو، ہم ڈی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ریلوے ٹریک چینج کرو۔ مت کھتو دے گھر اس دوست ہے کہ پن مڑن مز ایتن تھی والا تل تم والا ایتن شاخ عیالس شاخ والا 50-60-70 گئی دیکھیے یہ جو بارہمولہ اوڈی ریل ٹریک کا جو یہ پروجیکٹ ہے ہم اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو جائے یہاں پہ، لیکن ہم انصاف چاہتے ہیں۔ یہ جو ٹریک ہے یہ جو ہے بستی کے باہر سے بننا چاہیے، بلکہ بستی سے باہر بالکل بننا چاہیے، بستی کے اندر سے نہیں بننا چاہیے، تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہے اور یہاں کی جو بستی ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائے۔ یہی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہوگی۔ تھینک یو۔ میرے جو فادر صاحب ہیں وہ کینسر پیشنٹ ہیں، ہمیں 10 سال ہو گئے اور میں سنگل چائلڈ ہوں۔ اس ٹائم ہم مینٹلی اتنے زیادہ اسٹریس ہو چکے ہیں کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہم آلریڈی بہت پریشان ہیں، میل پاور گھر میں ہے نہیں، ہم اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ سب جو بھی ہو رہا ہے پہلے تو یہ وداؤٹ پبلک کنسینٹ ہو رہا ہے، ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں گیا، بنا پوچھے ہی آ کے نشان دے کے جا رہے ہیں۔ دوسرا اتنے سالوں سے یہاں بس رہے ہیں، 1961 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا یہ ایریا، اور جبکہ ان کے پاس حل ہے کہ وہ اس ایسے ایریا سے نکال سکتے ہیں جہاں ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہے، یہ گراؤنڈ سے یا کہیں اور سے بھی نکال سکتے ہیں، بٹ یہ ریزیڈینشیل ایریاز میں آ رہے ہیں جہاں پہ بزرگ رہ رہے ہیں، اولڈ ایج پیپل اس ایریا میں زیادہ ہیں، تو اس ٹائم وہ کہاں جائیں گے، پیسوں کو کیا کریں گے؟ اس ٹائم جو ہے ہم مینٹلی بہت زیادہ اسٹریس ہے۔ شیروانی کون ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس پلان کو جو ہے ریویو کیا جائے اور کینسل ہونا چاہیے۔ ہم اپنی بہن چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم اینڈ تک اس چیز کو فائٹ کریں گے، ہم اپنے گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ میوس خاندار سہ گو خدایس حوالہ اس کت گھو ونکس اچھا بڑی دم مکانے کھالن اس ما بیمو کھت ژوٗر ما ٹینٹ دن پتھر عیال ہے پہ کور عیال اس گھو تو گھو کور تھی ؤنو اس گورمنٹس ماتنٲیِو تُہۍ سٲنۍ آواز تہِ اس کُن تہِ وٕچھو اس گٔے عمر مکانس یہ کیٛاہ تھاوو تہِ لوگ مکان پٮ۪ٹھ أسۍ کیٛاہ کرو تہٕ کرو کیٛاہ۔ ہم گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے یہاں ڈی سی صاحب ہیں جو مین ایڈمنسٹریشن ہے وہ سپاٹ پہ آئیں، وہ دیکھیں کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ اور کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک محلے کو ایک گاؤں کو بسنے میں ٹائم لگتا ہے، تو جب اس کے بیچ میں ٹرین گزرے گی تو کتنے گھر افیکٹڈ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام سے گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ہم سے نہیں ہے، عوام سے گورنمنٹ ہے، تو عوام ہی گورنمنٹ بناتی ہے،
तो हम एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो नजीर साहब ने कहा उसके आगे का मैं बताता हूँ। तमाम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं वो एक स्पॉट पे आएँ और स्पॉट पे देखें कि वाकई जो हाउसेज हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग बसे हैं, कोई 40 साल से, कोई 70 साल से कोई बसे हुए हैं, क्यों एक बस्ती से एक सिटी की रौनक होती है। अगर ट्रेन ही घूमती रही तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से 3 मकान उठ रहे हैं तो 6 तो इसको देखते रहेंगे, तो कौन सी हमारी वो वॉइस होगी, जो पोल्यूशन का सिस्टम है, जो वॉइस पोल्यूशन होगा वो कहाँ जाएगा? तो हम एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, आवाम गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट हमारी होती है, तो प्लीज गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट अच्छी तरह वेरीफाई करे कि आवाम गलत तो नहीं बोल रही है। तो हम बेहद दुआ जोड़ के गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ही हमारी होती है, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बाहर नहीं है, तो गवर्नमेंट आए ऑन द स्पॉट, वो सिचुएशन को देखे, जो राइट है वो देखे। ना यहाँ किसी से पूछा, ये प्रेसिडेंट साहब है, मैं सेक्रेटरी हूँ शेरवानी कॉलोनी एरिया का, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं आई, कोई आदमी नहीं आया जो हमें बोला कि भाई जिस तरह से हमें यहाँ रेलवे ट्रैक लेना है और उसके बाद हमें फिर यहाँ इसलिए ये टोटली दिस इज टोटली अ वायलेशन अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने सब कुछ बाला तर रख के, इन्होंने ना पूछा ना कुछ, ऐसे ही ये गाड़ लिए। वहाँ शेरवानी कॉलोनी में भी ऐसे ही है, तो हर एक सहन में ऐसे ही है। हमारे अंदर दिल्ली के अंदर लोगों वो सीधे इस तरह डका से ना सो लगाओ, ये हमारे मुंह पर इन्होंने मार दिया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेहरबानी करके मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप हाईलाइट कीजिए, आपकी वसादत से ये गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाइए, ताकि हमारा कुछ इजाला हो। हमारे हम देखो, आई एम ऑल्सो ए रिटायर्ड पर्सन, आई एम 65। इज इट पॉसिबल फॉर मी दैट आई कैन गो फॉर ए फ्रेश कंस्ट्रक्शन? अस्सलाम वालेकुम। आज चूंकि हम यहाँ जमा हो रहे हैं, मैं बेसिकली जेटी डेवलपमेंट फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और इस जेटी के साथ कम से कम 4-5 महल्ले मुंसलिक हैं। और हमारे पीछे जो ट्रैक लाइन है, जो रेलवे की लाइन आ रही है, ये माजिद फुरकान को काट कर, माजिद रहमत को काट कर, शेरवानी कॉलोनी को काट कर फतेहपुरा की तरफ जा रही है। ये जो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये माजिद फुरकान और जेटी का सेंटर प्लेस है और इस बस्ती को 2 हिस्सों में काटा गया। हमारे पीछे कम से कम 600 फुट के करीब रेलवे ट्रैक है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस थे और 2-4 दिन से अचानक हमारे आंगनों में, हमारे सहनों के मकानों के सामने ये पोल लगाए गए, नस्ब किए गए हैं। तो हम हैरान हुए, ना हमसे कोई किसी ने पूछा नहीं, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आई। तो अचानक ये हमारे ऊपर एक ऐसा पहाड़ गिर गया कि रेलवे ट्रैक हमारे सीने के साथ, हमारे पेटों के साथ गुजर रही है। ये बस्ती को जब बीच में रखती है तो इसके साइड में जो भी बस्ती है वो किस काम की, वो सारी इफेक्ट होती है। क्योंकि जब ट्रैक चलेगी, रात दिन को यहाँ आना जाना रहेगा, फिर यहाँ बस्ती वालों का रहना क्या, किस फायदे का। और हम इस वक्त उस एज में है, हम रिटायर आदमी है, इसमें यहाँ की जिस बस्ती है 80% जो है रिटायर मुलाजमीन है। अगर कोई दूसरा भी है वो लेबर क्लास है और एज है 70 से कम इस वक्त कोई नहीं है। अगर हमें कोई मुआवजा मिलता भी है, लेकिन हम इस सूरत में है ही नहीं कि हम किसी जगह कंस्ट्रक्शन करें। डिसलोकेशन करें। हमारे आबा अजदाद यहाँ बसे हैं, हमारा मरगुजार यहाँ है, हमारी मस्जिदें यहाँ है, हमारा एरिया यहाँ 40 साल से 50 साल से लोग बस रहे हैं। अगर आप लोगों के खैर का है तो लोगों के ऊपर से ट्रेन गुजारनी क्या है? इसके बहुत सारे ऑप्शंस है। हम सुनते थे कि यहाँ ये पार से जाएगी, ये ब्रिज से जाएगी, लेकिन अचानक ये हमारे आंगनों, हमारे सहनों में जो पोल नस्ब किए गए, इससे हम परेशान हैं। अभी हमारी नींदें हराम की है एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे टस से मस नहीं हो रहे हैं, ना में कोई इंफॉर्मेशन है। इस सिलसिले में हमने आज इस जेटी के बस्ती में ये एक पूरा अमन एहतिजाज का एक सिलसिला किया है, ताकि अवामी बारह हुकूमत के सामने हमारी आवाज पहुंच जाए। फिलहाल हम पूरा अमन है, क्योंकि हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सारे इस वक्त तैयार है कि हम निकलेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, कुछ और करेंगे। हमने कहा कि चूंकि हम भी मुलाजिम रह चुके हैं, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, हम एक प्रोसेस के जरिए ये अपनी जो डिमांड्स है, हमारी जो ग्रीवेंस है, वो हुकूमत बाला से पूछाएंगे। लेकिन हम प्रोसेस भी कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो ये जो इस वक्त हालात हमारे पर ठोसी जा रही हैं, ये कम से कम लोगों तक पहुंचे और अवामी हुकूमत आला तक ये जाहिर हो जाए कि ये
इन पर ये पूछे बगैर जुल्म क्यों हो रहा है। इस सिलसिले में हमने आज आपको तकलीफ दी है, आपकी वसासत से हमारी जो ये ग्रीवेंसेस है, डिमांड्स है कि हमें डिसलोकेशन किस लिए कर रहे हैं। अगर आवाम की बेहतरी के लिए ट्रेन यहाँ आ रही है तो आवाम को पहले आप खत्म कर रहे हैं। हम उम्र भर नौकरी करके फिर हमारा ये दो ही चीज होते हैं, या शादी या मकान। वो हमने जैसे कैसे तो बनाया, अब जब हमारी उम्र कब्र के नीचे जा रही है, कब्र के लैंड के नजदीक है, और आप हमें डिसलोकेट कर रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। हमें क्या कर रहे हैं उस मुआवजे को, जब हमारी वो सकत ही नहीं है। हमारी 70 साल की है, तो कौन आदमी वो सकत लाएगा, फिर नए मकान बनाएगा, फिर नई सोसाइटी उसको कायम करनी है, फिर नए समाज के साथ रहना है, कहाँ जाएंगे हम। तो ये मेरी तरफ से, आपकी वसासत से, हमारे माले फुरकान, जटी, खाजाबाग, शिरवानी काली के अवाम की तरफ से, आपकी वसासत से गवर्नर साहब, मौजूदा हुकूमत, वजीर आला, जो भी इसके वाला, रेलवे, हालांकि रेलवे महकमा अचानक हम पर मुसलत होता है, कोई हमसे पूछता नहीं है, ताकि हमारी आवाज वाला अफसरों तक पहुंच जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, कम से कम खुदा रहा हमारे हाल पर रहम कीजिए और इसको डाइवर्शन करके किसी और रेलवे ट्रैक को बहाल करो, रेलवे ट्रैक को चेंज करो, रेलवे ट्रैक को चेंज करो।